Dear students, today we shall study the second chapter from the book First Flight. The title of the lesson is Long Walk to Freedom. It is actually an extract or it is a part from the autobiography of Nelson Mandela, the great leader of South Africa. Nelson Mandela is considered to be one of the greatest leaders of modern age. He spent all his lifetime to abolish the system of apartheid that was prevalent in South Africa. Apartheid is basically a system, a political system in which people are differentiated or separated or segregated on the basis of their race or the color of their skin. So, in South Africa, this system was practiced for nearly 3 centuries, and Nelson Mandela spent all his lifetime fighting against this system of apartheid that was the basis of suppression, oppression, torture, and tormentation for the native people of South Africa. He spent nearly 30 years in prison, and finally it was due to his efforts that South Africa came up, South Africa rose up as a democratic republic in which equality and freedom was given to everyone. Therefore, because of his prolonged efforts, rigorous efforts, South Africa honored Nelson Mandela not only as the first black president of South Africa, but also he was given the title of the father of South Africa, as we have Mahatma Gandhi as the father of nation in India. So Nelson Mandela is called the father of the nation in South Africa. Here in this chapter, Nelson Mandela remembers the particular day of 10th May 1994 when South Africa became a democratic republic after the first democratic elections that were held in South Africa, and Nelson Mandela was elected the first black president there. So he remembers that particular day of 10th May 1994 emotionally and expresses his thoughts about that particular day in this chapter. So now let's read the chapter. Here the chapter comes. नेल्सन मंडेला सेज, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10th May dawned bright and clear. 10 मई का दिन, dawn means rose up, उदय हुआ. तो 10 मई का दिन उदय हुआ, bright and clear, चमकदार और साफ सुथरा. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged. मैं had been यानी रहा था, pleasantly means खुशनुमा रूप से. तो पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े खुशनुमा रूप से, besieged means surrounded by, तो बड़े खुशनुमा तरीके से मैं घिरा रहा था by dignitaries. Dignitaries means honorable people, तो सम्मानित लोगों के द्वारा, and world leaders, और वैश्विक नेताओं के द्वारा, who are coming to pay their respects, जो कि आते जा रहे थे साउथ अफ्रीका में, to pay their respects. To pay their respects यानी to express their good wishes, तो अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मीन्स द राइज ऑफ साउथ अफ्रीका एज अ डेमोक्रेटिक नेशन. तो साउथ अफ्रीका एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था. तो उस साउथ अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में उदय के अवसर से पहले तमाम देशों के लोग, तमाम वैश्विक नेता साउथ अफ्रीका आ रहे थे अपनी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और साउथ अफ्रीका के इनॉग्रेशन में भाग लेने के लिए.
तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। ये इनॉग्रेशन यानी साउथ अफ्रीका का एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक देश के रूप में साउथ अफ्रीका का उदय वुड बी यानी होगा, संभवतः रहा होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, सबसे विशाल सम्मेलन किसी भी काल में, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर शायद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का किसी भी काल में ये सबसे बड़ा सम्मेलन रहा होगा, जो कि साउथ अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के उदय और उद्घाटन के अवसर पर हुआ। वो कहते हैं कि द सेरेमनीज टुक प्लेस, सेरेमनीज यानी संस्कार, समारोह। तो साउथ अफ्रीका के उदय का ये समारोह टुक प्लेस, घटित हुआ, आयोजित हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, सुंदर सैंडस्टोन यानी रेत के पत्थर की एम्फी थिएटर, तो सुंदर रेतीले पत्थर के बने हुए एम्फी थिएटर मीन्स ओपन थिएटर, एक खुला सभागार जो कि फॉर्म यानी बनाया गया था या बना हुआ था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया इज वन ऑफ द 3 कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उनमें से एक है प्रीटोरिया। इट इज कंसिडर्ड टू बी द एग्जीक्यूटिव सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के इस प्रीटोरिया शहर में जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, 2 बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनको यूनियन बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है, एज वी हैव राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट और संसद भवन, सेम इन द सेम मैनर देयर आर यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। तो ये जो 2 बड़ी इमारतें हैं यूनियन बिल्डिंग्स की, इनके बीच में अगर आप देखेंगे कभी तो इनके बीच में सीढ़ियाँ सी बनाई गई हैं और वो इस आकार में इस तरीके से व्यवस्थित की गई हैं कि वो एक खुले हुए सभागार का रूप ले लेती हैं। दे कम टू एक्वायर द शेप ऑफ एन ओपन थिएटर। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये समारोह आयोजित हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, प्यारे से, सुंदर से रेतीले पत्थर के बने हुए उस खुले सभागार में, जो कि बना हुआ था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा इन प्रीटोरिया, प्रीटोरिया में। और फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 सालों की एक अवधि, ड्यूरेशन ऑफ 10 years इज नोन एज अ डिकेड। तो फॉर डिकेड्स हिंदी में से कहते हैं दशक, तो 10 साल की अवधि को कहते हैं दशक। तो कई दशकों तक, फॉर डिकेड्स यानी डिकेड्स, तो कई दशकों तक दिस हैड बीन द सीट, दिस मीन्स दिस प्लेस यानी प्रीटोरिया। तो दशकों तक, कई 10-10 वर्ष की अवधियों तक, यानी एक लंबे समय तक, दिस हैड बीन ये रहा था, द सीट यानी द प्लेस, द सेंटर, तो ये एक स्थान, ये एक केंद्र रहा था ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ऑफ वाइट रेन, वाइट रूल। तो श्वेत लोगों की सत्ता का, श्वेत लोगों के शासन का ये एक केंद्र रहा था। एंड नाउ, और अब, तो काफ़ी लंबे समय तक प्रीटोरिया का ये यूनियन बिल्डिंग्स और आसपास का इलाका, ये स्थल, ये शहर अंग्रेज़ों की, गोरे लोगों की, श्वेत लोगों की सर्वोच्चता, सत्ता का एक केंद्र रहा था। अब तक वहाँ पे उन्हीं लोगों का शासन चलता था और देशी लोगों को, नेटिव लोगों को, अफ्रीका के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। लेकिन अब ये था, अब यानी इस समय, जब साउथ अफ्रीका का ये उद्घाटन या उदय का समारोह जो आयोजित किया जा रहा था, तो ये स्थान जो है वो अब बन गया था द साइट यानी स्थल ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, एक रेनबो यानी इंद्रधनुष, सतरंगी। तो ये एक स्थल बन गया था एक सतरंगे सम्मेलन का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, तमाम रंगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये एक सतरंगे सम्मेलन का स्थल बन गया था, विभिन्न रंगों के और विभिन्न राष्ट्रों के, क्योंकि तमाम देशों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ, जो कि आए हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, जो वहाँ आए हुए थे, मौजूद थे। इंस्टॉलेशन यानी एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना। तो स्थापना के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट,
साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए। तो वो तमाम लोग जो देश विदेश से और अंतर्राष्ट्रीय जगत से वहाँ आए हुए थे, उन सब की उपस्थिति से ये एक सतरंगी समारोह का रूप ले लिया था। तो नेल्सन मंडेला याद करते हैं उस दिन को और कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे या सुंदर ऑटम डे यानी वसंत का मौसम, तो उस प्यारे या सुंदर वसंत या हेमंत के समय आई वॉज एक्कम्पनीड, मैं जो है वो साथ दिया गया बाई माई डॉटर जिनानी। तो मुझे साथ दिया गया, मेरा साथ दिया गया मेरी बेटी जिनानी के द्वारा। और तो वो उनके साथ थी ऑन द पोडियम। पोडियम मीन्स द स्टेज। तो स्टेज दैट वॉज बिल्ट और मेड, तो वो स्टेज जो कि बनाया गया था, जो मंच बनाया गया था उस समारोह के आयोजन के लिए और नेल्सन मंडेला व तमाम अन्य राजनेताओं के शपथ ग्रहण के लिए, तो उस मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन। स्वेर इन मीन्स शपथ लेना, अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेना। तो उस मंच पर मिस्टर डी क्लर्क ने को सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय या दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मिस्टर डी क्लार्क को वहां पर उस मंच पर दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और देन फिर थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो म्बेकी जो है उनको शपथ दिलाई गई, उन्होंने शपथ ग्रहण की एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका के शपथ ली। और नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब ये मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने भी शपथ ली, टू ओबे यानी पालन करने की, और अपहोल्ड यानी कि संरक्षित रखने की, बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संरक्षित रखने की, सुरक्षित रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और शपथ ली टू डिवोट माई सेल्फ यानी अपने आप को डिवोट करने की, समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। वेल बीइंग यानी वेलफेयर, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि द डेमोक्रेटिक नेशन। तो साउथ अफ्रीका के इस लोकतंत्र की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की भलाई और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, और असेंबल्ड यानी एकत्रित हुए, जमा हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, तो वहां एकत्रित हुए, समारोह में मौजूद हुए, जमा हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड यानी देखने वाली दुनिया से, आई सेड, मैंने कहा। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वहां मौजूद तमाम मेहमानों से और सारी जो समारोह को देखने वाली जो दुनिया थी उनसे मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय ओवर प्रेजेंस हियर, यहाँ अपनी अपनी मौजूदगी से, अपनी अपनी उपस्थिति से, यहाँ पर आज हम सभी कन्फर ग्लोरी, कन्फर मीन्स टू प्रोवाइड, तो हम सभी जो है वो प्रदान करते हैं, प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी यानी भव्यता, ऐश्वर्य, और होप यानी आशा या उम्मीद। तो आज अपनी अपनी उपस्थिति से यहाँ पर हम सभी लोग एक नई ऐश्वर्य, एक नया ऐश्वर्य और एक नई आशा प्रदान कर रहे हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न मीन्स नवजात, न्यूली अचीव्ड, तो एक नवजात या नई पैदा हुई आज़ादी के लिए। तो साउथ अफ्रीका की नई पैदा हुई इस आज़ादी के लिए एक उम्मीद और एक ऐश्वर्य या भव्यता हम प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति के द्वारा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ यानी कि थ्रू द एक्सपीरियंस, थ्रू यानी के द्वारा, से होकर या गुजर कर, द एक्सपीरियंस यानी अनुभव से, तजुर्बे से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर यानी कि मानवीय संकट या विपत्ति या त्रासदी, तो एक मानवीय संकट या विपत्ति जो कि असाधारण थी, और दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो कि
लास्टेड मीन्स कंटिन्यूड, जो कि जारी रही थी, टू लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय तक। तो एक असाधारण मानवीय विपत्ति या संकट जो कि बहुत लंबे समय तक जारी रहा था, उसके अनुभव से गुजरकर मस्ट बी बॉर्न, अवश्य ही बॉर्न यानी पैदा होना चाहिए, अ सोसाइटी यानी एक समाज, एक ऐसा समाज ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता, सारी इंसानियत गौरवान्वित हो, गर्व कर सके। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी मीन्स द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कहते हैं कि हम यानी साउथ अफ्रीका के लोग, हु वर आउटलॉज, जो कि आउटलॉज थे। आउटलॉज हेयर मीन्स बायकॉटेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा एक प्रकार से बहिष्कृत थे, पृथक कर दिए गए थे, उनको अलग कर दिया गया था, साउथ अफ्रीका के लोगों को अलग थलग छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां पर अपार्थीड या रंग भेद की व्यवस्था प्रचलित थी। इसलिए सामाजिक बरादरी ने उनको अलग थलग कर दिया था कि जब तक यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इज मेंटेन, जब तक उनको समानता या बराबरी का अधिकार जो है वो समाज में उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय बरादरी उनका समर्थन नहीं करेगी। तो इसलिए वो अब तक साउथ अफ्रीका के लोग एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक समुदाय से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग पड़े हुए थे। तो इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम लोग यानी साउथ अफ्रीका के लोग, जो कि थे आउटलॉ यानी कि बहिष्कृत या सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड, त्यागे हुए, अलग किए हुए, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, यानी हाल ही तक। तो हम लोग जो कि अब हाल ही तक है ना बहिष्कृत या पृथक थे, विश्व समुदाय से अलग थलग पड़े हुए थे, हैव टुडे बीन गिवन। तो हम लोग आज हैव बीन गिवन ही दिए गए हैं, हम लोगों को आज प्रदान किया गया है द रेयर प्रिविलेज, रेयर यानी कि वेरी लेस फाउंड, बहुत कम मिलने वाला, प्रिविलेज यानी स्पेशल राइट। तो हम लोगों को बहुत ही दुर्लभ एक विशेष अधिकार मिला है आज, टू बी होस्ट। टू बी होस्ट यानी कि मेहमान नवाजी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के राष्ट्रों की। तो आज हमें अवसर मिला है दुनिया भर के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी धरती पर, हमारी अपनी ज़मीन पर। और इस प्रकार से हम पुनः जो है वो विश्व समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं, और विश्व समुदाय ने हमें अपने सहयोगी और सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए वी थैंक ऑल, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल मीन्स ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, सारे अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजीशन, टू टेक पोजीशन मीन्स टू शेयर, भागीदारी करने के लिए, टू पार्टिसिपेट। तो हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद या शुक्रिया या आभार व्यक्त करते हैं यहाँ आने के लिए। टू टेक पोजीशन मीन्स टू शेयर, साझा करने के लिए, भागीदारी करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ यानी का, तो किस चीज़ को साझा करने के लिए, व्हाट इज, जो कि है, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, तो उस चीज़ को साझा करने के लिए जो कि आखिरकार है, जो कि अंततः है, अ कॉमन विक्ट्री, एक साझा जीत, जो एक सभी की जीत है, कॉमन विक्ट्री है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव सम्मान के लिए। तो जो सभी की एक साझा जीत है, उस जीत की भागीदारी करने के लिए यहाँ आए हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद या शुक्रिया अदा करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, और हमने एट लास्ट यानी अंततः या आखिरकार, अचीव यानी हासिल कर लिया है, और हमने अंततः हासिल कर लिया है ओवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इमेंसिपेशन यानी कि फ्रीडम और लिबर्टी। तो अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति, राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली है। वी प्लेज ओवर सेल्स, और हम प्लेज यानी टेक एन ओथ, और हम शपथ लेते हैं, ओवर सेल्स अपने आप से, और हम अपने आप से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, टू लिबरेट मीन्स टू फ्री, और हम अपने आप में शपथ लेते हैं, टू लिबरेट यानी मुक्त करने की, आज़ाद करने की, ऑल ओवर पीपल, अपने सभी लोगों को, अपनी जनता को। तो हम यहाँ पर अपने आप से शपथ लेते हैं, अपनी जनता को, अपने लोगों को मुक्त करने की, फ्रॉम एनी से, किससे, द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज,
लगातार जारी रहने वाली उस बॉन्डेज यानी कि स्लेवरी, गुलामी, उस लगातार चलने वाली गुलामी से किस चीज़ की? ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, डिप्राइवेशन यानी कि वंचना या हक छीन लेना, हेयर इट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन एज वेल, तो शोषण। तो हम शपथ लेते हैं अपने लोगों को मुक्त कराने की उस निरंतर चलने वाली गुलामी से, गरीबी की, डिप्राइवेशन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन शोषण की, सफरिंग यानी कि पीड़ा की, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर मीन्स लैंगिक और अन्य भेदभाव की। तो इन तमाम चीज़ों की गुलामी से हम अपने लोगों को आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। और नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा, शेल इट बी यानी ऐसा होगा, और कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, हम ऐसा कभी दोबारा नहीं होने देंगे कि ये सुंदर भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस, तो ऐसा मौका हम कभी नहीं आने देंगे दोबारा कि ये सुंदर भूमि दोबारा कभी एक्सपीरियंस यानी अनुभव करे द एक्सप्रेशन ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स सप्रेशन, दमन, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे के द्वारा दमन या शोषण दोबारा से ये सुंदर भूमि अनुभव करे, महसूस करे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। द सन शैल नेवर सेट, और द सन शैल नेवर सेट, सूर्य जो है वो कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ऑन यानी पर, किस पर? सो ग्लोरियस, इतनी भव्य या शानदार एक मानवीय अचीवमेंट यानी उपलब्धि पर, तो इतनी बड़ी और शानदार इंसानी उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। यानी साउथ अफ्रीका की आज़ादी जैसी जो महान उपलब्धि हासिल की गई है, ये कभी भी दोबारा से अंधेरे में गायब नहीं होगी, ये हमेशा इसी तरीके से चमकती रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, तो आइए, फ्रीडम यानी कि आज़ादी को, रेन मीन्स टू रूल, तो आइए आज़ादी को शासन करने दें, आज़ादी का शासन हो, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर, ब्लेस मीन्स कृपा करना, और ईश्वर अपनी कृपा करे, ईश्वर अपनी कृपा रखे अफ्रीका के ऊपर। So after swearing in as the first black president of South Africa, Nelson Mandela delivered this short but inspiring speech. तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति या ब्लैक राष्ट्रपति या डार्क स्किन्ड राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये छोटा लेकिन प्रेरक भाषण दिया। और उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पलों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने लिफ्टेड यानी उठाई अपनी नज़रें ऊपर, तो कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई, इन ऑ, ऑ मीन्स फियर मिक्स्ड विद सरप्राइज, तो आश्चर्य मिश्रित, आश्चर्य के साथ मिक्स है ना, डर के साथ हम सभी ने अपनी आंखें जो है वो ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रुप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जैसे जैसे या जैसे ही, अ स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर मीन्स वॉचेबल, अट्रैक्टिव, एरे मीन्स अ स्पेशल ग्रुप और फॉर्मेशन, तो कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई भय मिश्रित आश्चर्य के साथ, जैसे ही एक दर्शनीय समूह ने ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट विमानों के, हेलीकॉप्टर्स के, और ट्रुप कैरियर्स यानी कि सैन्य वाहकों के, तो जैसे जैसे साउथ अफ्रीकन जेट विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप कैरियर्स, इन सभी के एक देखने लायक समूह ने, रोड मीन्स नॉइज्ड या पास्ट नॉइजिंग, तो जैसे इन सारे विमानों का समूह देखने लायक तरीके से पास्ट रोरिंग, नॉइजिंग, शोर करता हुआ, दहाड़ता हुआ गुजरा, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल आदर्श संयोजन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से, तो सभी लोगों की नज़रें अपने आप ही ऊपर उठ गईं उस दर्शनीय दृश्य को देखने के लिए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, आगे वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट, ये नहीं था, ओनली यानी केवल, तो ये नहीं था केवल अ डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, पिन पॉइंट प्रेसिजन मीन्स सुई की नोक के बराबर शुद्धता या त्रुटिहीनता, तो ये केवल
सुई की नोक जैसी शुद्धता या त्रुटिहीनता का ही प्रदर्शन नहीं था और मिलिट्री फोर्स यानी सैन्य शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि साथ ही साथ अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की निष्ठा का, वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, जनतंत्र के प्रति, जनता के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, तो उस नई सरकार के प्रति जो कि मुक्त रूप से और साफ सुथरे ढंग से चुनी गई थी। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, अब इसी चीज पर वो थोड़ा सा और विचार करते हुए कहते हैं कि ओनली मूवमेंट्स बिफोर, केवल कुछ ही पलों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, तो जो सबसे ऊंचे पद वाले जो जनरल्स थे, नायक थे, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, तो दक्षिण अफ्रीकी सैन्य बल, डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, टॉप कमांडर्स थे, और देयर चेस्ट बीडेक्ड, जिनके चेस्ट यानी सीने, बीडेक्ड मीन्स डेकोरेटेड, और जिनके सीने सुशोभित थे, सजे हुए थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन्स के साथ, मेडल्स यानी पदकों के साथ, फ्रॉम डेज गॉन बाई, फ्रॉम द डेज पास्ड बाई, तो गुजरे हुए दिनों के मेडल्स और रिबन्स के साथ जिनके सीने सजे हुए थे, उन तमाम जो है वो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के सबसे उच्च पदस्थ, हाईएस्ट पोस्टेड जनरल्स और कमांडर्स ने, टॉप कमांडर्स ने, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, मुझे सलामी दी, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और शपथ ली अपनी निष्ठा की, वफादारी की। तो कहते हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, तो उन सब ने जो है वो उन्हें सलामी दी और निष्ठा की शपथ ली, लेकिन वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनमाइंडफुल नहीं था, मतलब बेध्यान नहीं था। तो मैं बेध्यान नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे ध्यान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट यानी ऑफ द रियलिटी, मुझे इस हकीकत, इस वास्तविकता, इस तथ्य का ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, तो मैं बेध्यान नहीं था इस हकीकत के प्रति, मतलब मुझे पूरा ध्यान था इस हकीकत का, इस वास्तविकता का, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, नॉट यानी नहीं, सो मैनी ईयर्स बिफोर यानी बहुत ज़्यादा साल पहले नहीं, तो बहुत ज़्यादा साल पहले नहीं मतलब हाल ही के वर्षों में। तो कहते हैं कि मुझे इस बात का पूरा ध्यान था, इस हकीकत का पूरा ध्यान था कि ज़्यादा समय पहले नहीं, ज़्यादा वर्षों पहले नहीं, यानी कुछ ही वर्षों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने सैल्यूट या सलामी नहीं दी होती मुझे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता, क्योंकि वो आंदोलन का नेतृत्व करते थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने से पूर्व, इससे पहले कि साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, उससे पहले वो एक नेतृत्वकारी आंदोलन करता थे, तो इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ता था और तमाम अधिकारी उन्हें प्रताड़ित भी करते थे। तो उस समय को याद करते हुए वो कहते हैं कि ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है जब उन्होंने मुझे जो है वो सलामी नहीं दी होती, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता, लेकिन अब वही जनरल्स, वही टॉप कमांडर्स मेरे प्रति वफादारी और निष्ठा की शपथ ले रहे थे। ये लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, और आखिरकार या अंततः आखिर में, अ शेवरॉन मीन्स वी शेप्ड फॉर्मेशन, तो एक वी आकार की रचना में इम्पाला जेट्स, इम्पाला नाम के जो जेट विमान थे, उन्होंने लेफ्ट यानी कि वो उड़ते चले गए, छोड़ते हुए अ स्मोक ट्रेल, स्मोक ट्रेल मीन्स स्मोक लाइन्स, तो वो तेजी से उड़ते चले गए आसमान में और पीछे धुएं की रेखाएं छोड़ते हुए, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं की रेखाएं छोड़ते हुए, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के रंगों के प्रतीक के रूप में। अब वो कहते हैं द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और ये दिन, वॉज सिम्बोलाइज्ड मीन्स वॉज अ सिंबल, ये दिन एक प्रतीक, एक यादगार बन गया फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, बाय द प्लेइंग यानी बजाने के द्वारा या बजने के द्वारा, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगान, तो अफ्रीका में दो राष्ट्रगान बजाए गए उस दिन, उस समारोह की समाप्ति पर। तो वो कहते हैं ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक, एक यादगार बन गया
हमारे दो राष्ट्रगानों के बजने के साथ, एंड द विजन, और उस दृश्य के साथ, किस दृश्य के साथ, ऑफ वाइट्स यानी वाइट पीपल सिंगिंग, जबकि वाइट लोग, श्वेत लोग या गोरे लोग सिंगिंग यानी गा रहे थे निकोसी सिकिलल अफ्रीका, पहला राष्ट्रगान, नया राष्ट्रगान, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टैम. The full line goes, Die stem with Sweet Africa, which means that was the old anthem of the Republic. तो जो कि पुराना राष्ट्रगान था ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका का जो पुराना राष्ट्रगान था डाई स्टैम, जो कि पहले गाया जाता था अंग्रेज लोगों के द्वारा, which means of South Africa, Die stem white sweet Africa. This was the full form of that song of the first line. तो ये डाई स्टेम सॉन्ग और द ओल्ड एंथम ये गाया जाता था अंग्रेज लोगों के द्वारा, जबकि ये जो नया एंथम था निकोसी सिकिलल अफ्रीका, दिस वाज टू बी चूजन बाय द नेटिव अफ्रीकन पीपल. तो जो देशी काले लोग थे अफ्रीका के, उनके द्वारा ये नया राष्ट्रगान चुना गया था. तो आज जो है वो उलट पलट करके अश्वेत लोगों का गान, राष्ट्रगान श्वेत लोगों के द्वारा गाया जा रहा था, और श्वेत लोगों का राष्ट्रगान अश्वेत लोगों के द्वारा. तो इस प्रकार से ये एक विशेष यादगार दिन बन गया था. ऑल्दो दैट डे, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नेदर ग्रुप न्यू, नेदर ग्रुप मीन्स नेदर द ग्रुप ऑफ द वाइट्स नॉर द ग्रुप ऑफ द ब्लैक्स. तो ना तो अश्वेत लोगों का समूह और ना ही श्वेत लोगों का समूह, तो ना ही गोरे लोगों का और ना ही काले लोगों का समूह उस दिन जानता था द लिरिक्स यानी बोल या शब्द ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान का, उस राष्ट्रगान के, दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको वो एक समय, डिस्पाइज्ड मीन्स डिसलाइक डॉट हेटेड, जिसको वो एक समय नफरत करते थे या घृणा करते थे या नापसंद करते थे या कम सम्मान देते थे. तो यद्यपि उस दिन उन दोनों समूहों में से, काले और गोरे दोनों समूहों में से, कोई नहीं जानता था उस राष्ट्रगान के बोल जिससे वो एक समय नफरत करते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं दे वुड सून नो, वो जल्दी ही जान जाएंगे द वर्ड्स बाय हार्ट, इन शब्दों को, बाय हार्ट यानी दिल से, जल्दी ही ये शब्द वो दिल से जान जाएंगे, दिल से पहचान जाएंगे, और ये शब्द उनके दिल पर राज करने लगेंगे. एंड दे विल कंटिन्यू, दे विल ट्राई टू लिव पीसफुली एंड हारमोनियसली विद वन अनदर, और वो एक दूसरे के साथ शांति और सौहार्द के साथ रहना सीख लेंगे.